Hi everyone, good evening, Sat Shri Akal, Ram Ram. So VARC revision for 100 percentilers club. Hi Akansha, good evening to you too. Good evening, good evening. Hanji. So people are still joining. Let's move ahead. This session, we're going to be talking about significant terms of critical reasoning. It's going to be a revision for you. That what do we mean by statements and arguments, assumptions? We just had a discussion in the noon on YouTube about facts, inference, judgment also, but not that detailed. We'll just quickly revise that what do we mean by these terms. Namaskar, Sparsh. Namaskar. Hanji, good evening to you too, Mahi. So these significant terms are very important for two reasons. One is obviously for CR questions, and at the same time for RC. Yes, RC का भी जो text है आपका, that is one thing to understand, to comprehend and everything. And the second part of RC is decoding that question. Decoding that question. Like quickly, if I ask you, if I say that, what do we mean by the author would least likely to disagree? Would least likely to disagree. So what do we mean by this? Would least likely to disagree? Yes, more agree. Exactly, Sparsh. More agree. Least is negative, disagree is negative, 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 be positive, right? So that's how I say that critical reasoning ka command hona bahut zaruri hai if you want to really excel in reading comprehension as well, right? So do you have any idea about these terms? Facts, inference, judgment. We just had a discussion at noon. Now, decision, what do we mean by the word for decision? Conclusion, assumption, arguments, logic, deductive, analogies. Let's see how many we will be able to cover today, right? Those who are new, let me introduce myself. This is my introduction. But you know what? Abhi just Sparsh ne kaha ki gyan bhari baatein and the beautiful weather. So gyan is also like, if taken well, is like a beautiful weather only. We all carry a kind of a weather. Always, we carry a weather around that we usually call our aura or our vibes. So gyan also, a lot of people put the gyan word aside or the entire gyan aside because they feel that all this is very ideal. No, a small correction in your philosophies must that gyan is not ideal, that is fundamental, and it is always very difficult to stick to fundamentals. So yesterday I received a message from a student on my Instagram account, and she said, it's a 28th November is approaching and I'm afraid, I'm scared with this thought only that it's just come. What do I do? Honestly, I had nothing else to say, but I just conveyed the fundamental truth and I said, study. Can there be any replacement? Can there be any replacement of this? If you are afraid, if you're scared, if you're anxious, what maximum you can do, what minimum you can do, that is study, work about it, work for it. That's it. So that's to begin with today's gyan, that gyan is not ideal. That's fundamental, and most of the times our ears want to listen to what they want to listen to. So ye aaj ka part hua. Chaliye. So let's move ahead. Exactly, Abhi. That's absolutely right. Yes, love it or leave it. You know? So thanks to Unacademy, guys. A lot of students I see, they're subscribed batch of students. It's written there whenever their name pops up. And still, you guys have time, so pick up your structured preparation, guys. For you, for that, you can pick up either Plus or Iconic. Iconic is more elaborated. Good evening, Smriti. And when you do that, you should always go for long term. Yes. I always say that, you're ready to invest your 2 years, you're ready to invest, hefty amount, 15 to 20 lakhs you're going to spend on your MBA, a lot of energy, a lot of time you're going to give it. Do not shy
from investing a little more capital and time to give your preparation the structured format. And when you do that, you can always use my code that will give you 10% additional benefit. That's how you can pick up batches accordingly. Those the students who are plus subscription students, my course, I've been receiving messages kab start hoga. So 4 or 5 courses I've already done with on plus. Next week I'm starting with one more course. CAT Iconic is more to do with the customized study plan. It is planning, strategy, doubt clearance, and everything, but it's more on one-on-one, so you can pick up accordingly. Chaliye. So before we start talking about significant terms, nahi Sujan, only today's session is at 4 o'clock. So usually it is at 5, but sometimes due to certain reasons, I keep it 4 also. And obviously, emergency or ad hoc, the timings can be changed, but that's duly informed on Telegram. If by any chance you guys are not able to attend a particular session, the recorded session is already there, is always there. Okay? चलिए, तो उड़ान भरने से पहले, टेक ऑफ करने से पहले कुर्सी की पेटी बांधी जाए. बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है यार, सेल्फ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, डू बिलीव इन सेल्फ. यस, सेल्फ को इतना हल्के में मत लो. यही है जिसके साथ आप हमेशा रहोगे, हमेशा रहते हो. दैट्स योर सेल्फ. And you need to work on yourself a lot. Self-engineering is required for leaders. Fortune. Yes. You know what? I got this word, I got this abbreviation copyright on my name. Self-engineering for leaders fortune. I run my programs also with this name. Self-engineering for leaders fortune. Here. That important, this word is self. So believe in yourself and you can do wonders. And what is wonder? That is also something you need to decide, that what's wonderful for you, and you can create that. Chaliye. So Suraj, Shreya, you guys have just joined. So you were spared from my today's gyan. Bach gaye aap log. Baki log ko sunna pada sara before coming on to questions and discussion and everything. Yes. So देखिए जरा महफिल में कौन कौन है. हमारी महफिल में है नमन, लक्ष्य, अनुष्का, प्रियंका, स्मृति, अर्णव, श्रेया, स्पर्श, आकांक्षा, नाइस, माही, हिमांशु, सुजान, संचित, शिवानी, चेतना, स्वप्निल, प्रीति. वाओ, beautiful महफिल is already on. हाँ. This moment we are currently in is wonderful. Exactly, Spursh. That seize the moment, huh? ठीक है, इन्फ्रेंस एक बार क्लियर कर दो. कर देंगे, आ जाएंगे. पहले अभी का एजेंडा ऐसा पूरा करेंगे, टाइम बचाएंगे, फिर उसको इन्फ्रेंस को दोबारा रिवाइज कर लेंगे. ठीक है. सो फैक्ट, इन्फ्रेंस, जजमेंट के हमने आज कुछ क्वेश्चंस किए थे वाईटी सेशन पे. एक क्वेश्चन में उसका भी आपको टू स्टार्ट विद देता हूँ. ठीक है. ओके, उसके बाद अपन बाकी टर्म्स पे भी चलेंगे. सो फैक्ट इज एन इंफॉर्मेशन, judgment is an opinion, and inference is a conclusion. ठीक है. कंक्लूजन और इन्फ्रेंस में जो वर्ड में डिफरेंस होता है वो डेफिनेटली होता है, नो डाउट्स होता है, पर उसकी हम जैसे मॉडल्स को जरूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज वी आर नॉट गेटिंग इनटू द PhD ऑफ वर्बल लॉजिक ओनली. सो इन्फ्रेंस यू कैन कॉल इट अ कंक्लूजन इन टर्म्स ऑफ लुकिंग एट. किसने भेजा ये नूब वाला इमोजी मेरे को? किसने भेजा ये यार? क्वेश्चन पूछ लिया करो ना बेटा. कंफ्यूज्ड इमोजी भेजते हो. नंबर 1, ना तो पता लगता है किसने भेजा है, अनुष्का, और ना ये पता लगता है कि क्वेश्चन क्या है तुम्हारा. प्लीज पूछो, सवाल पूछा करो. ठीक है. So inference is basically a conclusion based on something we derive. Okay, based on something we derive. Sentence में हमेशा से कुछ ऐसा दिया हुआ होगा कि on the basis of that you come on to something. That is the sentence called inference. The sentence is called fact if it is sharing an information only. The sentence is called a judgment if it's sharing an opinion. Okay. अनुष्का, सॉरी सेंट बाय मिस्टेक से काम नहीं चलेगा. पीछे जाकर खड़े हो जाओ घर पे एकदम. हाँ, जिस रूम में बैठ के क्लास अटेंड करो उसमें चले पीछे चले जाओ और ऐसे हाथ ऊपर कर लो. हाँ, हाथ ऊपर कर ले बेटा. शाबाश. मुर्गा नहीं बनाएंगे. चलो, क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. क्विकली गिव मी थम्स अप इफ यू आर रेडी फॉर द क्वेश्चन एंड गेट मी 100%. यस, रेडी? दे दिया जाए. सवाल आपकी स्क्रीन पे.
प्रॉमिस कर रहे हो 100% एक्यूरेसी आने वाली है ना पूरी क्लास की? ठीक है, ओके, सॉल्व। सॉल्व, टेल मी। पोल भी देंगे, पोल भी देंगे, डोंट वरी, सॉल्व करो आराम से। ना मुझे 100% स्कोर मत देना तुम लोग कभी एक साथ सारे मिलके। प्रियंका, स्पर्श, शिवानी, they've got it correct. शिवानी, स्पर्श, प्रियंका, अनुष्का, अभी, मानसी, किशलय, शाबाश। Only 35% students are getting the right answer. Why? Swapnil, shabash. Arnav, cool. Okay. माही ए ऑप्शन इसलिए नहीं दिख रहा है बिकॉज आपको मेरा ऐसा वो पिक्चर दिख रहा होगा ना, सो दैट कैन बी, ऐसा उसको ड्रैग कर सकते हो, ऐसा घुमा सकते हो। हाँ, जब भी मुझ पे गुस्सा आए, फ्रस्ट्रेशन हो, तो ऐसा उसको वीडियो को पकड़ के ऐसे कर सकते हैं, करके देखो, कर्सर लेके जाओ उसके ऊपर। इन्फ्रेंस ओपिनियन भी हो सकता है, कैसे होगा देखते हैं ना, डिस्कस करते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है, कोई इशू नहीं है। देखो, आंसर तो डी है, आप लोग को पता ही है बिकॉज यू पार्टिसिपेटेड इन द पोल। नाउ हाँ जी, नाउ लुक एट दी सेंटेंसेस। अब किसको डाउट है इसमें, क्या डाउट हो गया? एक सेकंड रुको, एक तो मेरे भी सामने आ रहा है ना। हाँ, क्या डाउट है इसमें, क्यों इतना गलत हुआ? पॉइंट ए, हाँ जी, इट ऑफन अपीयर्स। अब किसको अपीयर करता है? आपको अपीयर करता है, मुझे नहीं करता। कैसे? दैट फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स बिलीव दैट सम बिलीव अपीयर्स। अब हाउ इट इज अपीयर्ड, इट इज योर ओपिनियन, राइट? इट कैन अपीयर समथिंग एल्स टू मी, it might not appear like this to me, it can be it can be different, right Aman? Look at the word, it often appears that financial market participants believe that some governments are lacking the credibility required to create confidence in the system. Yes or no? Pick up the word appear, pick up the word believe. It is judgment. और किस सेंटेंस में डाउट है? इट्स अ क्लियर जजमेंट है ना? टेल मी any other sentence you have a doubt on? बोलो, should I move ahead? Quickly tell me guys. First हो गया judgment. A currency board is a government institution that exchanges domestic currency for foreign currency at a fixed rate. Fact. अब if you look at the first one and if you get it, it's judgment, तो ये भी cancel हो जाएगा, ये भी cancel हो जाएगा. And if you look at the second one, which is a fact, so इसमें भी fact है, इसमें भी fact है, दोनों ही बचे हैं. अब दोनों में देखो different क्या है. लास्ट वाले पे आ जाओ, लास्ट वाले में ये इन्फ्रेंस है और ये जजमेंट है. आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया माही, इट मींस यू नॉट आपने वो दिन वाला सेशन अटेंड नहीं किया होगा, है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाकी इसके आगे जो होगा वो काम का होगा, डोंट वरी, डोंट वरी, ठीक है? सो ये जजमेंट और ये इन्फ्रेंस, अब इन दोनों में डिफरेंस है ना? सो एज अ रिजल्ट ऑफ सच फॉरेन करेंसी होल्डिंग्स पीपल बिलीव, एज अ रिजल्ट ऑफ, अब एज अ रिजल्ट ऑफ तो आपने कंक्लूड किया है ना, यानी कि बेस्ड ऑन दिस, ऑन समथिंग, एज अ रिजल्ट ऑफ सच फॉरेन करेंसी होल्डिंग्स, उसके बेसिस पे आएगा, राइट? तो ये इन्फ्रेंस हो गया. क्लियर? पीपल हु हैव नॉट स्टडीड दिस टॉपिक, यू वांट टू स्टडी एएसएपी, द सेशन इज ऑलरेडी देयर. ओके, आज लिया है दिन में. Otherwise, if you're a beginner, if you would like to wait, you can always wait. I'll obviously teach you. ठीक है? Because you are attending right now the revision batch. But terms जो आएंगे अब वो सारे अटेंड कर सकते हैं सब मिलके, so not an issue. ठीक है? चलिए. Hi, hi, hello. But do you want me to call you D230?
टेल मी योर नेम फर्स्ट. चलिए, सो कोर्स ऑफ एक्शन से शुरू करें. Quickly give me thumbs up if your people are ready to solve course of action questions. Now, before I give you course of action question, just tell me, what is a course of action? What first word strikes your mind when you look at this something called course of action? In CR questions, in RC questions, sometimes you come across, what should be the right course of action? Tell me the one word comes to your mind. Kishla says process. Okay. Step. That's nice. Most suitable action among given alternatives. First says that. That's amazing. Course of action. Okay. I'll give you something very beautiful. Course of action. The word you look at course of action. ये आपको समझना हो. भाई कभी भी ऐसा है ना कि भाई चाहे CR का क्वेश्चन हो चाहे RC में हो, कोर्स ऑफ एक्शन अगर आपसे पूछे तो आपको ये स्ट्राइक करना चाहिए. What's next? अब क्या, इसके बाद क्या? ये तो सिचुएशन हो गई. Now, a lot of people feel that course of action is basically a solution to a problem, right? लगता है हमको सबको ऐसा कि कोई प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, है ना? Yes, Smriti, that's absolutely right. Plan. Try and understand. The situation can be negative, जिसका solution निकालते हो आप. The situation can be positive also. तो उसमें फॉलो अप आएगा कि अब क्या करें. भाई बहुत सिंपल है ना. You've made up your mind to prepare for a particular examination. You made up your mind to prepare for a particular examination. Is it a problem? Y or N? Is it a problem? It's not. That's absolutely correct. So when it's not a problem, then you cannot look for a solution also. So then you look for a follow-up. I've made up my mind to prepare for a particular examination. The next step, what next? What plan, what step, what out of given alternatives? So basically, the next would be follow-up. Like what? Prepare. फिर क्या होगा? फिर एग्जाम का टाइम आ जाएगा तो क्या होगा? फॉर्म फिलिंग. फिर क्या होगा? फिर कॉल आ जाएगी, फिर GDPI, उसका प्रिपरेशन. फिर वो क्लियर होगा, फिर 5 कॉलेजेस में सिलेक्शन हो जाएगा. हाउ कैन बी फॉलो दिस? हाँ, अभी आ रहा है, सब आ रहा है. ठीक है, फिर 5 कॉलेजेस में सिलेक्शन हो जाएगा. फिर क्या होगा? अब क्या करें? अब ये होगा कि भाई इन सारे में से एक सेलेक्ट करना होगा. फिर अगर किसी एक या लेट्स से फॉर एग्जांपल 2, हाँ एग्जैक्टली, बेस्ट पिक होगा. ऐसा होता है फाइनली कि चलो 2 इंटरव्यूज हैं 2 कॉलेजेस के. वो स्पर्श, आई एम गिविंग यू द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. ठीक है, इफ देयर आर 2 कॉलेजेस and there's a same day of interview, okay, there's a same day of interview, what will you decide where to go? Same day of interview, you cannot be at both the places, so there's an opportunity cost. Yes or no? There's an opportunity cost. अगर एक उठाया तो दूसरा छूटेगा ही छूटेगा. Yes or no? That's what critical reasoning is. What's good for me, right? Best bid क्या है? So क्रिटिकल रीजनिंग आपको ये सिखाता है कि लाइफ में हमेशा सही और गलत नहीं होता है. लाइफ में हमेशा ज्यादा अच्छा और कम अच्छा भी होता है. लाइफ में कई बार काफी खराब और कम खराब भी होता है. हाउ डू यू टेक योर कॉल? दैट इज, nobody can actually help you. Nobody can help you in taking that call. You can always pick up certain facts from people, from resources, from the world outside. Now, for example, sometimes students, okay, so I'll tell you a story about my student. So she got a call from Symbiosis and she made it also. SIMC, Symbiosis Institute of Mass Communication, she wanted to go to, and she got through. And she felt that she could prepare really well, and she did not prepare, this year along with her graduation. So she should be going for next year. She picked up that call and she dropped Symbiosis for better colleges next year. Now next year she couldn't get it, but this is one story. Okay, this is one story. She couldn't get it next year. उसको next year SIMC तो मिला ही नहीं, और जो better colleges होने थे वो भी नहीं मिले. उससे भी रिजल्ट्स कम आया. अच्छा, बहुत अच्छा नहीं आया रिजल्ट. Now can we pick up anything out of it? Can we take this reference कि हमें कॉलेजेस के जो अभी मिल रहा है वो ले लेना चाहिए? क्या हमें ऐसा क्या आपको लगता है कि हम इससे ये सीख जाएं कि हमें जो कॉलेजेस अभी मिल रहे हैं बस वो ले लेने चाहिए? नहीं.
Because there are examples where I've seen people, my students only, they left IIMs to get through better IIMs next year. Yes, there are students who left IIMs for getting better IIMs next year as well. And I've seen that happening. So it is your call. It is completely your call that how, Dekho, for example, a student who did not get through the next year. Okay, so I tell you certain facts also. It is not because there's no luck or something. I tell you certain facts. So she was an engineer, so she got a job also. She started working along with her preparation, and she said, "Sir, कि मेरे को revision करना है काफी सारा, and I can manage with my job." Now she actually could not manage with her job. What she did, she was, she got habitual getting salary every month. Then obviously she used to get tired, 5 days. So weekends used to be party time also. Now that party, obviously, the Saturday party needs a Sunday to get rid of that hangover as well. And then Monday you begin with your prep, your college, your office again. So preparation जिस level का चाहिए था, उस level का preparation नहीं हुआ. But at the same time, there's a student who joined a job also, but realizing that she's not able to do that, in the month of August, September, she left it and 3 months completely locked herself inside the room, and she prepared and she got through. She got the better IIM, in fact, next year. So you need to pick up, things of your life, and then accordingly you take your call. Yes, I think I've answered questions of few people here. Now, course of action, जब भी हम सोचते हैं कि आगे हम क्या करें, जब भी हम सोचते हैं कि हमारा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, तो सबसे पहले किसी भी तरह के सोल्यूशन या फॉलोअप पे जाने से पहले आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा. आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम. Once you identify the problem, you will come to the solution, obviously. But when you take the solution, you have to see the feasibility of that solution. You have to see the practicality of that solution. You have to see the logic of that solution, how logical it is. हाँ. किशले, डोंट वरी, ये लाइफ स्किल है. ये ना देखो, जिस दिन चीजों को समझना सिर्फ कैट के लिए और जैट के लिए छोड़ दोगे ना, लाइफ के लिए समझ लोगे, उस टाइम जैट और कैट तो अपने आप क्लियर हो जाएगा. यस, दैट्स व्हाट दिस एग्जामिनेशन इज आल्सो ऑल अबाउट. इट टेस्ट्स योर एक्चुअल पर्सनालिटी. ठीक है, सो कुछ क्लियर होता है. बस एक पॉइंट और बताऊंगा बिफोर आई गिव यू दी क्वेश्चंस. एक पॉइंट और बताऊंगा मैं, जब भी कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना हो, एक चीज ध्यान रखना कि एक ऐसा सोल्यूशन जो इस प्रॉब्लम को तो रेक्टिफाई कर देगा, लेकिन हो सकता है एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, वो सोल्यूशन कभी भी सोल्यूशन नहीं होता. ठीक है, डन, मेक सेंस? शुड आई गिव यू अ क्वेश्चन नाउ? कोर्स ऑफ एक्शन का एक क्वेश्चन दिया जाए आपको. सो रिवाइज करने वालों का रिवीजन हो गया बिल्कुल कि कोर्स ऑफ एक्शन क्या होते थे, और जिनको जो नया पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा. ठीक है, चलो, देयर इज अ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइस, गिव मी द आंसर. People who are new, what you're supposed to do, you're supposed to read the statement, decode it, identify the problem. There are the course of actions. You need to select which one should be followed. Both or none, it's your choice. The poll will be there, don't worry. I am getting 100%. कहानी सुनी तुमने, वो बेताल वाली, विक्रम बेताल वाली कहानी सुनी कभी? तुम मिलेनियल्स हो, तुमने पता नहीं सुनी होगी, नहीं सुनी होगी. विक्रम बेताल वाली कहानी हो जाती है मेरे साथ. जैसे मैं बोलता हूँ कि अरे ओहो स्कोर आ रहा है बिल्कुल 100%, वैसे कोई ना कोई गलत कर देता है. स्पर्श, किशलय, संचित, लक्ष्य, आकांक्षा, चेतना, श्रेया, शिवानी, मनु, अपर्णा, माही, अनुष्का, स्वप्निल. वेरी नाइस. ठीक है, so सबके आंसर्स आ गए.
हाँ, तो मेरे साथ विक्रम बेताली होता है, जैसे मैंने बोला नहीं, और यूं मैं चला टाइप करके 100% वाला स्कोर चला जाता है। वेल, लीडरशिप, सॉरी, लीडर बोर्ड देखते हैं। स्पर्श, शिवानी, किशलय, अनुष्का, स्वप्निल, 5 people are getting 2 on 2. Let's see at the end of the class who gets 100%. चलिए बढ़ जाएं आगे। कोई डाउट इसमें, कोई इशू, कोई शक, बोलो। जिन्होंने गलत किया उनको कुछ 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 डिस्कस करना है कि क्यों हुआ। सबका क्लियर है? Anyone has any doubt, you can ask me, otherwise we can move ahead. ठीक है, ऑल राइट, ओके ओके ओके। अभी ने कहा बी क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, जल्दी नहीं बोला तू। एनवायरमेंटलिस्ट आर कंसर्न्ड विद द रैम्पेंट। रैम्पेंट क्या होता है, जल्दी से बताना जरा, थोड़ी सी वोकैब आपकी ब्रश अप की जाए, जरा देखा जाए किस किस की वोकैब ठीक ठाक चल रही है अभी। रैम्पेंट क्या होता है? वेरी हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड, राइट? रैम्पेंट क्या होता है? थ्रेश होल्ड, ओके। सो रैम्पेंट बेसिकली आप देखोगे तो ये यूजुअली वर्ड ग्रोथ वगैरह के साथ यूज होता है ना? हाँ, नहीं फोर्स्ड नहीं होता सुजान, फोर्स नहीं होगा। रैम्पेंट ऐसे याद रखो, राम और पैंट, राम जी अगर पैंट पहनते, छोटी मोटी तो पहनते नहीं, है ना? ऐसी पैंट पहनते ही पूरा आधा संसार उसमें आ गया टाइप ऐसे करके। तो रैम्पेंट राम जी की पैंट ऐसे, यानी कि एक्सेसिव, बेसिकली एक्सेसिव, वेरी लार्ज, वेरी बिग, यू नो, एक्सेसिव। ओके, ठीक है। So environmentalists are concerned with the rampant illegal clearing of Amazon rainforest to use the cleared lands for commercial purposes. Environment agencies should hit the ground and fight the people committing such illegal activities to stop them. ऐसा आपने देखा और ऐसा करने चलेगा? या प्रोटेस्ट तो जब करोगे जब आप, see you have a right, okay, you have a right to express, आप अपना पॉइंट रखो आगे। अगर वो नहीं होगा उसके बाद करोगे ना ये तो, और वैसे भी दिस इज लाइक यू नो टेकिंग लॉ एंड ऑर्डर इन योर हैंड, और यहां पर अपने को पॉलिटिकली करेक्ट उठाने पड़ते हैं चीजें। कोर्स ऑफ एक्शन इन पेपर, इन डॉक्यूमेंट्स, यू हैव टू कम अप विद पॉलिटिकली करेक्ट थिंग, राइट? यस और नो? यस। चले आगे। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, क्विकली गिव मी द आंसर गाइस, क्विकली गिव मी द आंसर। श्रेया एंड किशले, स्पर्श एंड नमन, वेरी गुड यार, तुम लोग तो ये 5 सेकंड में क्वेश्चन कर लेते हो। मैं तो कई बार ऐसा उसमें आ जाता हूँ, क्या बोलते हैं वो, होता है ना, हमें तो कॉम्प्लेक्स हो जाता हूँ कई बार कि मैंने कहा मैं तो जब स्टूडेंट था तो मेरे से तो जल्दी होता ही नहीं था। एंड माइंड यू, आप उस टाइम के पेपर्स उठा लो, पेपर इजी नहीं होते थे बिल्कुल। डोंट डोंट थिंक कि हम तो बस ऐसे ही पहुंच गए थे। हम ऐसे ऐसे ही पहुंच गए थे, तो ज्यादा कुछ मेहनत का काम है नहीं, हो जाएगा सब। हैप्पीनेस इज द की। 80% पीपल आर गेटिंग द राइट आंसर। क्या बात है, 100% नहीं ला सकते तुम। किसने गलत किया है ये? कौन है महान इंसान जिसने गलत किया ये? बस किसले इतना स्कोर आ गया था कि पहुंच गए वहां पे, लेकिन फर्स्ट वाला क्यों नहीं हो सकता? ओके, स्पर्श, शिवानी, किशले, अनुष्का, स्वप्निल still are getting 3 on 3. That's very nice. नमन, एक बार जरा मन में पढ़ो, जरा दोबारा पढ़ो एक बार फर्स्ट। Despite prolonged talks, despite prolonged talks, the Chinese forces continue to occupy certain parts of land close to the LAC that India claims as its own. So India should stop talks and launch an attack to clear its territories. Would it be the first step once you get aware of this कि आप खूब बातें कर रहे हो, लेकिन the Chinese force continues to occupy certain parts of land? Will you stop talking and then launching an attack, or India should continue the talks but give a firm message to the Chinese side that it will not hesitate to act offensively if talks don't solve the impasse? एक बात बताओ बेटा, अटैक इज ऑलवेज द लास्ट ऑप्शन, है ना? Attack is always the last option. Okay? So first नहीं होगा इसलिए, ठीक है?
चलें आगे बढ़ें। यस, ओनली सेकेंड। स्पर्श ने कहा है कि आईएमसी की कॉल आई तो आपको ही कन्वर्ट करानी है। बेटा जो भी कॉल आएगी ना वो मैं कन्वर्ट करवाऊंगा, दैट्स माय प्रॉमिस। जो भी कॉल आएगी वो मैं कन्वर्ट कराऊंगा। आपका काम है कॉल लेकर आना, बिकॉज सारे सब्जेक्ट्स मैं नहीं पढ़ा सकता आपको। आपका काम है कॉल लेकर आना। कॉल आने के बाद दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्ट नीड टू फॉलो व्हाट ऑल आई टेल यू टू डू एंड देन आई विल हेल्प यू टू कन्वर्ट दैट कॉल। ओके, ऑल ऑफ यू लिसन टू दैट। जस्ट गेट मी द कॉल। तुम मुझे कॉल दो, मैं तुम्हें कन्वर्जन दूंगा। क्या बात है भाई साहब, मतलब छा गए एकदम आज तो। ओहो, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट, कंक्लूजन्स। सो कंक्लूजन के बारे में ज्यादा कुछ कहानी है नहीं। हाँ, कंक्लूजन के बारे में ज्यादा कुछ कहानी है नहीं। कंक्लूजन और जजमेंट में क्या डिफरेंस होता है मुझे कौन बताएगा? जज साहब जजमेंट क्यों देते हैं? जज साहब ये कंक्लूड क्यों नहीं कर देते कि ये भाई इसने मर्डर किया है? बताओ। जज साहब जजमेंट क्यों देते हैं, क्या लगता है आपको? जज साहब डिसीजन क्यों देते हैं? बहुत अच्छा सा डिस्कशन होने वाला है, लेट पीपल रिस्पॉन्ड। जज साहब जजमेंट क्यों देते हैं, डिसीजन क्यों देते हैं, कंक्लूजन क्यों नहीं देते? सो देखते हैं। रुको रुको रुको, कुछ स्टूडेंट्स कुछ कुछ बोल रहे हैं कंक्लूजन में फैक्ट्स भी होते हैं। तो अरे मैडम अनुष्का जी, ये जो जजमेंट दे रहे हैं क्या वो मन से थोड़ी देते हैं शक्ल देख के मर्डर की कि भाई नहीं 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 तूने दाढ़ी बढ़ा रखी है और तेरे को देख के ठीक भी नहीं लग रहा है, इसकी तो शक्ल से लग रहा है इसने मर्डर किया होगा। ऐसे थोड़ी होता है, वहां पर भी तो फैक्ट्स होते हैं। नमन ने कहा जजमेंट ओपिनियन होता है, कंक्लूजन नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो हमने वहां वर्ड ये जजमेंट क्यों यूज कर रखा है अपने कोर्ट्स में जजेस के लिए? वहां वर्ड भी देखो जज है, हाँ जजमेंट और जजेस है। कंक्लूड क्यों नहीं हो रहा है वहां पे? वर्ड कंक्लूजन क्यों नहीं हो रहा है? कंक्लूजन मीन समरी नहीं होता माही। जजमेंट हैज राइट और रॉन्ग का ओपिनियन। हाँ, जजमेंट खुद की नजर में होता है, बिल्कुल सही है। कॉज जजमेंट के बाद प्रूव्स एंड कैन बी बायस्ड based on proofs. Okay, okay, conclusion is the end whereas judgment isn't. Exactly स्मृति, क्या बात है, बहुत बढ़िया बच्चे। रेलेवेंट वैलिड एंड लॉजिकल जजमेंट नहीं आर्ग्यूमेंट होता है मेरे बच्चे। सारे प्रूफ देखकर अपने ओपिनियन से जजमेंट देते हैं। हाँ, काफी लोग कितना सही बता रहे हैं, आप लोग तो सही में इंटेलिजेंट हो, मैं हैप्पी हो गया बस। देखो कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन होता है 100%। जबकि कोर्ट्स में आपका जो जज है उसको वर्ड ही जज और उनके लिए जजमेंट वर्ड क्यों यूज किया गया है? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि हैं तो जो बैठे हुए लोग हैं वो भी इंसान है ना। सो हो सकता है उनसे कोई डिटेल कोई फैक्ट कुछ मिसिंग हो जाए। बट अब ऐसे कैसे पता लगेगा? कोई तो होगा ना, किसी तरफ तो अपना एक लॉ एंड ऑर्डर लेकर जाएगा किसी एक पॉइंट को। अब जिसके भी हाथ में अपन ने वो अथॉरिटी दी कि सर आप बताओ सर फाइनली फिर आपको क्या लगता है, इसकी शक्ल देख के बताओ, जैसे मर्जी आप बता दो। सो वो अपना पूरा होमवर्क करते हैं, केस चलता है, फैक्ट्स आते हैं, एविडेंसेस आते हैं, विटनेसेस आते हैं, सब कुछ आता है। बट स्टिल बिफोर गिविंग इट द फाइनल वर्ड इट दे यूज द वर्ड जजमेंट एंड दे से कि भाई मेरे अकॉर्डिंग, मैं एज अ जज यहां बैठा हूं, मेरे अकॉर्डिंग। क्या आपने कभी सुना होगा, हिंदी फिल्मों में देखा होगा ना, सभी सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए, यानी कि बेस्ड ऑन ऑल दिस आई एम गिविंग यू दिस जजमेंट। ठीक है, ये मेरा ऐसा नहीं है, मैंने कंक्लूड नहीं कर सकता। एंड दैट इज द रीजन इंडियन गवर्नमेंट गिव्स अस द राइट कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का दिया हुआ जजमेंट जो है, हम क्यों इसको आगे अपील कर पाते हैं, क्यों हम अपील कर लेते हैं इसकी हायर कोर्ट में, या हाई कोर्ट से हम सुप्रीम कोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट से हम प्रेसिडेंट के पास क्यों चले जा सकते हैं? क्योंकि कोर्ट खुद ये कह रहा है कि ये मेरी ओपिनियन है, अगर आपको सही नहीं लग रही तो आप आगे प्लीज अपील कर लो। आई बात समझ में? दैट्स व्हाई सम जजमेंट्स आर ओवर रूल्ड बाय अपकमिंग। दिस इज एग्जैक्टली एग्जैक्टली समझ में आया? थोड़ा सा तो अपन जब भी कोई क्लास करें तो क्लास के बाद यूं थोड़ा सा तो बेटर फील करना चाहिए ना अपने आपको कि कुछ हेल्दी डिस्कशन हुआ, सम काइंड ऑफ एन इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हैपेंड, राइट? लेकिन जैसे ही कंक्लूजन वर्ड की बात आती है ना, तो कंक्लूजन होते हैं मैथ्स में होते हैं। देखो जैसे 2+2 अगर किया तो जो कंक्लूड हुआ ये 4 है। अब अगर ये बदलना है तो यहां कुछ बदलना पड़ेगा, नहीं तो ये तो यही रहेगा। यहां 3 कर दोगे तो ये 5 हो जाएगा, यहां 3 कर दोगे तो ये 6 हो जाएगा, माइनस कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये कंक्लूजन है जो कि फैक्ट्स के बेसिस पे 100% होता है। ये होता है 100%। आती बात समझ में? अगर फिलोसॉफिकली इफ यू अंडरस्टैंड दिस आई कैन गिव यू अ क्वेश्चन एंड देन यू कैन टेल मी द आंसर। बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो जल्दी से। ऐसे ऐसे ये इमोजी में नहीं देखता हूँ, मेरे को पता नहीं लगता कौन बोल रहा है। मेरे को एक्टिव चाहिए स्टूडेंट्स। मनु, अनुष्का, माही, स्मृति, अभी, स्पर्श,
गोली रेडी, स्ट्राइकर रेडी। ठीक है, करो फिर, क्वेश्चन करो। ओ बिफोर दैट आई नीड टू टेल यू अबाउट अनअकैडमी कॉम्बैट। हाँ, ये तो मुझे बताना ही पड़ेगा आपको, अनअकैडमी कॉम्बैट। प्रियांशी, प्रियांशी मैं तेको रिमाइंड करवाता रहूंगा। यू गॉट, प्रियांशी गॉट 33rd रैंक, स्टिल शी इज नॉट पिक्ड अप हर सब्सक्रिप्शन। अच्छा, उसका कोड आना बाकी है। सो दैट्स हाउ यू रिसीव योर कोड्स एंड यू कैन अवेल योर स्कॉलरशिप व्हेन यू टेक अनअकैडमी कॉम्बैट। ये इसके लिए अनअकैडमी कॉम्बैट देना जरूरी है। और अगर स्कॉलरशिप, स्टिल आई कॉल इट अ लिटिल स्मॉलर मेजर, द बिगर मेजर इज असेसमेंट गाइस। पर्सनल असेसमेंट होगा आपका, आप कहां तक पहुंचे हो, कहां तक थोड़ा सा कहानी समझ में आने लगी है, वो क्लियर होता जाता है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइस, टेल मी द आंसर। कंक्लूजन बेस्ड ऑन द गिवन स्टेटमेंट, चूज द राइट कंक्लूजन। बोल दिया जाए। ऋषिका, स्पर्श, स्मृति। Why only 20% people are getting the right answer? क्या हो गया, फंस गए? हाँ, क्वेश्चन में फंस गए। चलो कोई बात नहीं, लीडर बोर्ड क्या कहता है हमारा? इट्स ओनली स्पर्श who's getting 4 on 4 now. ओके, स्मिति 3, स्वप्निल 3। चलो ठीक है, लड़ो, बताओ क्या प्रॉब्लम हो गई इसमें। क्या प्रॉब्लम है? फिर इमोजी भेज दिया किसने, ये नूब वाला। बी क्यों? और इज गिवन, कहां है और कहां है? ये मुझे क्यों नहीं दिख रहा और? अच्छा, बी ऑप्शन में, इफ आई वेंट फॉर अ वॉक और आई हैड लंच। हम्म अच्छा, एक सेकंड, पहले इसको डिकोड कर लें। इफ द ब्रेकफास्ट डजंट हैव एग्स, ओके, if the breakfast doesn't have eggs, I will not go for a walk and I will not have lunch. यानी कि to go for a walk and to have lunch, what do I need? Step by step चलते हैं ना आराम से। Okay, I'll go for a walk and I'll have lunch. What do I need? Eggs in my breakfast? Yes, done. अब आ जाओ, सबसे पहले आपने जो ऑप्शन देखा सी। अच्छा, माही ने कहा सी। If I went for a walk and had lunch, the breakfast had eggs. और यहां पर क्या डिफरेंस है? और कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन और एंड हियर? If I went for a walk, and means both or anyone or both, right? Huh. So if the breakfast doesn't have eggs, I will not go for a walk and will not have lunch. मैं खुद क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ एकदम से? हाँ, क्लिक हो गया कहीं, ऐसे स्किप सा हो गया कुछ। If I went for a walk or I had lunch, the breakfast had eggs. If I went for a walk and had lunch, the breakfast had eggs. So और एंड में क्या प्रॉब्लम हो गई यार? दोनों ही तो होंगे ना, बी और सी दोनों क्यों नहीं है? Wait. Some people got this B as well. B is correct, then A also should be correct. If B is नहीं, ऐसा नहीं है. I just got confused a little. इनमें क्या होता है, एक छोटा सा स्किप होता है ना, पॉइंट स्किप होते ही I also got distracted a little and then skipped. Okay, back of the mind, I'm gonna keep solving this. एक बार रुकते हैं, स्टेटमेंट में भी और होना था, तब भी करेक्ट होता।
लेट मी जस्ट लुक एट इट फर्स्ट. हो सकता है कुछ एम्बिग्विटी हो, क्योंकि मुझे भी एकदम से क्लिक नहीं कर रहा है. Oh my God, if B is correct, then it should be like if anyone is true, we should involuntarily get that it had X. I know, Sujan, I know. एक काम करते हैं, let's not waste time on this. एक बार इसको साइड में रख देते हैं, क्योंकि ये जो कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, एक बार क्लिक नहीं होगा तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है. ठीक है. बैटमैन वाले एग्जाम्पल, इफ इट इज इन नाइट देन बैटमैन विल नॉट कम. आई नो. हाँ, एम्प्लॉय दिस एनालॉजी. इसको कर सकते हैं. गिव मी सम टाइम. आप एक और क्वेश्चन करो जब तक मैं इसको सॉल्व करता हूँ. यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. नहीं, ग्रुप में नहीं, अभी इसको मैं करके अभी देखता हूँ अभी. हाँ, पहले आप लोग ये वाला सॉल्व करो. इसके लिए पोल दिया जाए आपको. स्पर्श, स्मृति, वेदांशी, अभी. स्पर्श, दैट्स राइट. बैटमैन वाला एनालॉजी तो लगेगा उस क्वेश्चन में, बट एट द सेम टाइम या तो क्वेश्चन में भी फिर और होना चाहिए था ना. व्हाट आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग इज और एंड में क्यों डिफरेंस हो गया सी एंड डी में, व्हेन बोथ शुड बी. यस, बोथ शुड बी करेक्ट. बी एंड सी. बी एंड सी. दो यू राइट स्पर्श. चलो देखते हैं. स्पर्श गॉट 5 on 5, स्मृति गॉट 4, स्वप्निल गॉट 4. वेरी नाइस, वेरी नाइस. हाँ जी मानसी, उसी पे हूं मैं भी कि वाई नॉट सी. उसमें सी भी होना चाहिए था पहले. चलो एक बार उसको छोड़ के इस क्वेश्चन पे बढ़ते, नहीं तो वो अटके रह जाएंगे. हाँ. सो यहां पर हो गया आंसर अपना डी. ठीक है. चलो अब इसमें डी कैसे, इसको तो डिस्कस कर लेते हैं. इसमें तो अपने पास इंफॉर्मेशन है ना पूरी. अब a regular visit to the health club followed by a strict diet program helped 100 women reduce their respective weight. ठीक है. क्या क्या किया उन्होंने? एक तो हेल्थ क्लब रेगुलर विजिट किया और डाइट प्रोग्राम किया. So it helped 100 women reduce their respective weight. Does इससे रिजल्ट क्या निकाला इन्होंने? All overweight women should join health clubs and follow a strict diet program. The sample size of 100 and they said all. ठीक है. चलो अब ये तो हुआ अंडरस्टैंडिंग द पैराग्राफ. नाउ अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द कंक्लूजन इन द अबव आर्ग्यूमेंट. कंक्लूजन क्या है? ये वाला है. डज ऑल ओवरवेट वुमेन. ठीक है, ये कंक्लूजन है. इन द अबव आर्ग्यूमेंट is based on which of the following assumptions. यानी कि क्या चीज इन्होंने ग्रांटेड मानी है. ठीक है, कौन सी चीज इन्होंने ग्रांटेड मानी है, कौन सी चीज इन्होंने एज अ बेसिस ली है टू कम अप विद दिस कंक्लूजन ऑन द सैंपल साइज ऑफ 100 वुमेन कि भाई अगर इन्होंने ऐसा किया है तो ऑल ओवरवेट वुमेन शुड जॉइन हेल्थ क्लब्स एंड फॉलो अ स्ट्रिक्ट डाइट प्रोग्राम. Now, on what basis? The conclusion in the above argument is based on which of the following assumptions? Now, अब आप बताओ इसमें से कौन सा लग रहा है आपको? All overweight women want to lose weight. ये सबसे बड़ा assumption माना हमने. ये तो हमने सबसे बड़ा assumption माना ही है ना कि they want to. तभी तो हम उनको सजेशन दे रहे हैं. भाई हमने कहा कि अभी ने, लक्ष्य ने, स्पर्श ने, स्मृति ने 100 क्लासेस वीएआरसी की अटेंड की और उनके 100 परसेंटाइल आया वीएआरसी में. सो ऑल स्टूडेंट्स, ध्यान देना, ऑल स्टूडेंट्स शुड गो फॉर वीएआरसी 100 सेशंस टू क्लियर कैट. टू क्लियर कैट, ध्यान देना. ओके. अभी ने, लक्ष्य ने, स्पर्श ने, स्मृति ने, टू क्लियर कैट दे अटेंडेड 100 वीआरसी. सो हमने कहा ऑल स्टूडेंट्स वीआरसी शुड अटेंड 100 वीआरसी क्लासेस. यानी कि हमने यहां पर एक अजम्पशन ले लिया कि सारे के सारे स्टूडेंट्स को कैट क्रैक करना था. करेक्ट? नहीं, उनको पहले, सबसे पहले तो उनको कैट अटेम्प्ट करना है. दैट इज द फर्स्ट अजम्पशन. नो, तभी तो सेकंड अजम्पशन आएगा कि उनको 100% चाहिए. यस और नो? तो वही तो बात हो. यहां पर हमने कहा कि ओवरवेट जो लोग थे उन्होंने ऐसा किया तो वेट रिड्यूस हो गया. तो ओवरवेट लोग जो है वो ये काम करो. अरे ओवरवेट लोगों से तो पूछ लो उनको कम भी करना है नहीं करना. वो मस्त है करके नहीं करना उनको स्ट्रिक्ट डाइट प्लान, खुश है वो. बोलो. ये तो आपने फर्स्ट अजम्पशन मान लिया ना अपने आप, आपने एडवाइस देके.
भाई जैसे आज तक हम सारे स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं, बेटा खूब पढ़ा करो। हम सारे स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं, आपने एडमिशन लिया स्कूल में कॉलेज में, हम आपको बिना कुछ आपसे पूछे हम कहते हैं कि खूब पढ़ा करो। हो सकता है आपने पढ़ना ही ना हो, आपने कुछ और करना हो, हमने पूछा ही नहीं, लेकिन आपसे हमने अजम्पशन मान लिया ना कि आप तो स्टूडेंट हो, आप तो पढ़ोगे ही, मतलब आगे बढ़ोगे, अच्छा ही कुछ करोगे। यस और नो? राइट? क्लियर हुआ क्वेश्चन? बढ़े जिंदगी में आगे। चलिए ठीक है। सो बिफोर वी मूव अहेड, अच्छा ये कुछ टर्म्स थे, आज कौन कौन से कवर हो जाएंगे वो हम देख लेते हैं। हाँ सॉरी, ये टुडे नहीं है, एक तो ये टुमारो है, ये मैं ना क्या करता हूँ, मैं कुछ कुछ चेंज करता हूँ, कुछ कुछ छोड़ देता हूँ। सो टुमारो सेशन ऑफ आवर फिफ्थ, ओके 5th अगस्त रिविजन बैच ऑन अनअकैडमी स्पेशल क्लास, ये होगा स्ट्रक्चरल ग्रामर का कॉन्सेप्ट रिविजन। स्ट्रक्चरल ग्रामर का कॉन्सेप्ट रिवीजन, स्ट्रक्चरल ग्रामर के 1 और 2 सेशंस, ओके, उसमें सारा रिवीजन हो जाएगा। नॉट क्वेश्चंस आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्सेप्ट्स। सो वो लोग अटेंड करें जिनको कॉन्सेप्ट्स में इशू है, प्रोनाउंस, पैरेललिज्म, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मॉडिफायर्स, इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस, टेंसेस, जिनके भी कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है, वो स्ट्रक्चरल ग्रामर 1 एंड 2 सेशंस में आई विल बी रिवाइजिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स, नॉट क्वेश्चंस। अगेन क्वेश्चंस अलग से, वो सबके लिए होगा फिर, because there'll be new questions and everybody can solve। ठीक है? सो ये सेशन उन लोगों के लिए होगा जिनको स्ट्रक्चरल ग्रामर के कॉन्सेप्ट में इशू है, डाउट है, चैलेंज है। डन? ये कल का सेशन रहेगा। I know if anyone is there in the chat right now, sorry, in the group right now, and not join my Telegram group, you guys can come and join me there। चलिए assumption पे आए। assumption पे क्या है? assumption क्या होता है? There's something which is not sure, but there's some kind of a basis we have to say that। अभी हमने एक assumption का क्वेश्चन किया, कंक्लूजन आर्ग्यूमेंट assumption का मिला के क्वेश्चन था हमारे पास अभी। सो ऐसे assumption होता है कि क्या सोच के, हाँ, दिस शुड स्ट्राइक योर माइंड। जैसे वर्ड assumption देखो, आपको यहाँ पे आना चाहिए कि भाई क्या सोच के किया था ये, क्या सोचा था आपने, हाँ भाई मैंने तो यही सोचा कि आपको बढ़ना ही होगा आगे, तो मैंने कहा चलो आगे बढ़ जाते हैं। जब मैंने आपसे कहा कि चलो बढ़ जाएं जिंदगी में आगे, तो मैंने क्या अज्यूम करा कि एवरीबॉडी वांट्स टू मूव अहेड। यस और नो? मैंने कहा कि देखो कैट में ये क्वेश्चन आएगा, यानी कि यहाँ पर जो बैठे हैं लोग, यहाँ पर मेरा अजम्पशन है कि सब लोग कैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। यस और नो? ये मेरा अजम्पशन है ना, हो सकता है श्योरिटी ना हो सकता है कोई स्टूडेंट बैठा हो यहाँ पर कह रहे सर जबरदस्ती पिताजी ने बिठा रखा सर, या कोई ऐसा हो कि सर बस आपकी कुछ क्लास अटेंड करना है, मुझे मैं कैट नहीं करूंगा, मेरे को तो जस्ट एक बेसिक अपना एप्टीट्यूड डेवलप करना था। हो सकता है ना? इज दैट पॉसिबल? यस और नो? Is that possible? Yes or no? So can we say that all the students who are attending the session right now, they're all CAT students? It's an assumption. They're all CAT aspirants is an assumption. It's not concluded. It is an assumption. And based on that assumption, I pick up questions. Acha. Number one. Okay. Number two, if I teach you parajumbles, if I say that yours is a batch of CAT, and if I teach you parajumbles, what is my assumption? If I say this is a batch of CAT aspirants, and if I teach you parajumbles, what is my assumption? That parajumble is important for CAT. Number one. No, you are bad at parajumble is not an assumption at all here. Yes, एग्जाम में पैराजम्बल आएगा, पैराजम्बल इंपॉर्टेंट है, ये मेरा पहला assumption है। दूसरा assumption क्या है मेरा? You are CAT aspirants. I picked up parajumbles class to teach you. My second assumption is I can teach parajumbles. Yes. Third assumption is you are CAT aspirants. I picked up parajumbles to teach you. My third assumption is you will understand parajumbles. Got it? But इन सब में से कोई भी श्योरिटी नहीं है, इनमें से कुछ भी श्योर नहीं है। You have to learn parajumbles for CAT. हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा ना मन, पढ़ लेंगे अपन सब। ठीक है, क्वेश्चन दिया जाए एक assumption का। माही and few more students who were beginners and they come to this class to get an idea of all these CR terms and everything। अच्छा assumption है, ठीक है, हाँ क्लियर हो रहा, कुछ कुछ समझ में आ रहा है ना, बस ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग एक दिन में पूरी आती भी नहीं है। चलो क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइस।
वेरी गुड स्पर्श, शाबाश, बहुत बढ़िया. टुडे यू डिजर्व अ चॉकलेट. गेट ऑल ऑफ देम करेक्ट. Have chocolate or whatever gives you, whatever works as a soother, whatever relaxes you. बाबुल के घर से ढेर सारा प्यार मिलने वाले इस बच्चों को. देखो कितने अच्छे बच्चे हैं. वेरी गुड, शाबाश. Why only 40% people are getting it right? No, 33, 1/3. Anushka, Preeti, Chetna, Shivani, Rishika, Kishle, Sparsh. If I do not pronounce your name in a right manner, guys, do correct me, okay? You can help me, in fact. The leaderboard says Sparsh is getting 6 on 6, Shivani 4, Kishle 4, Anushka 4, Smiti 4, Swapnil 4. Wow, cool. हाँ जी, चलिए. So, कहाँ डाउट हो गया? क्या कोई डाउट है? अब तो कफन बांधने का टाइम चल रहा. ठीक है, ठीक है. बी क्यों नहीं? ठीक है माही, आ जाओ. बी बोले तो 1 और, अच्छा ठीक है, व्हाई नॉट बी. ठीक है, ठीक है. मानसी का भी बी है कि 1 और 2 हैज बीन अज्यूम्ड. ठीक है. देखो 1 और 2 तभी होता है कि अगर एक को अज्यूम करे तो दूसरा पॉसिबल नहीं अज्यूम करना है ना, और दूसरा कर लिया तो फर्स्ट पॉसिबल नहीं अज्यूम करना, तभी 1 और 2 होता है. Exercising does not necessarily mean gymnasium with high technology machines. After all, people living in villages are well maintained and are hardly overweight. ठीक है, समझ में आ गया? इसमें समझने में तो कोई इशू नहीं. Assumption 1. Gymnasiums are not very readily available for use in villages. Are we talking about this के villages में वो available है कि नहीं? It is about not necessarily mean gymnasium exercising. वैसे भी हो जाता है. जिन्हें कहा after all people living in villages are well maintained and sorry and are well maintained and are hardly overweight. So हमने yes I'm wrong. So first हमने क्या लिया है कि अगर हम कह रहे हैं people living in villages are well maintained, अगर villages का example यहाँ पर लिया है तो पहला ऑप्शन तो ये है ही कि हम मान के चल रहे हैं कि gymnasiums are not available there. Sorry, I was wrong. ये हो गया. Second, people living in villages do not believe in the use of high technology gymnasiums. Now, people's belief, the sentence does not talk about at all. That what is people's belief? ये तो अपन हवा में तीर चला रहे हैं माही. अगर अपने को बी लगता है, मानसी, अगर अपने को बी लगता है तो अपन हवा में तीर चला रहे हैं. अपन अज्यूम करने का मतलब ऐसा नहीं होता अपन ने कुछ भी सोच लिया. अज्यूम करने का मतलब होता है अपने को कोई ना कोई लॉजिकल बेसिस तो चाहिए ना. सेंटेंस में गिव मी अ सिंगल वर्ड इफ यू कैन टेल मी कि सर इससे मुझे लोगों के बिलीफ का पता लग रहा है. मानसी, माही, यू आस्क्ड मी द क्वेश्चन, सो दैट इज हाउ. प्लीज रिस्पॉन्ड. कोई एक सिंगल वर्ड भी ऐसा मिला है आपको? हाँ नहीं, फर्स्ट तो होगा ना, क्योंकि अपन ने क्या कहा कि सिर्फ जंगल में रहने से शेर जो है वो फिट नहीं होता है. सर्कस वाले भी तो जंगल में भागने से, ओके, जंगल में भागने से ही शेर फिट नहीं होता है, सर्कस वाले भी शेर फिट होते हैं. तो एक अजम्पशन तो यह है ना कि वो भाग नहीं सकते वो, तभी तो उनका एग्जाम्पल उठाया जा रहा है अभी. यस और नो? अगर हमने यहाँ पर उठाया कि भाई एक्सरसाइजिंग सिर्फ हाईटेक जिम्नेजियम में नहीं होती है, गांव में भी देखो लोगों को, वहां पर तो इनकी ऐसे वेल मेंटेन फिजिक होती है. तो एक अजम्पशन तो है कि वहां पर नहीं है. डन, अंडरस्टूड हो गया माही को भी. वेरी गुड. नेक्स्ट एक क्वेश्चन आर्ग्यूमेंट्स का. आर्ग्यूमेंट बहुत सारा डिस्कशन अपन कर चुके हैं, बट स्टिल आई टेल यू आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं. आर्ग्यूमेंट सबसे पहले तो एक बहुत ही पॉजिटिव टर्म है. आर्ग्यू करना हर किसी इडियट के बस की बात होती नहीं है, क्योंकि इडियट्स आर्ग्यूमेंट के नाम पे कुछ और कर रहे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि जो वो कर रहे हैं वो आर्ग्यूमेंट नहीं है. ठीक है, इससे अच्छे शब्दों में मैं और बता नहीं सकता उनके बारे में आपको. बाकी आर्ग्यूमेंट्स होते क्या है? अगर आप सबसे पहले तो रेलेवेंट बात करेंगे. जो भी आप बात कर रहे हैं, जो भी आप रीजनिंग दे रहे हैं, वो रेलेवेंट होनी चाहिए. ठीक है, उस पॉइंट पे तो रहो, पहले कुछ भी थोड़ी बोलोगे. ट्विटर वाले लड़के, हाँ. एक तो रेलेवेंट बोलोगे, दूसरा जो बात बोलोगे वो वैलिड तो बोलो. अपने फैक्ट्स तो चेक करो कि जो कह रहे हो वो सही भी है कि नहीं है. एंड थर्ड, यू नीड टू डू व्हाट, you need to see the logical aspect of it, that is it logical or not what you're talking about. Takes a lot to be a critic. Exactly, Smriti, takes a lot to be a critic. Gorakhpur wali बुआ जी. I know yaar, I know.
कई बार तो लगता है ऐसे लाइफ में अगर म्यूट का बटन होता तो कितनी जिंदगी आसान हो जाती। पर उसके लिए एक तरीका है, म्यूट का बटन तो अवेलेबल नहीं होगा जो लोगों को म्यूट कर सके, एक बटन पॉसिबल है, तो आप यहां लगवा सकते हो। हाँ, वो यहां से ऐसे इसको स्विच ऑफ कर दो आप, फिर बहुत आसान हो जाएगी। सो आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट में बेसिकली आपको ओपिनियन होता है, यस और नो, और ओपिनियन के साथ जब आप अपनी ये रीजनिंग मिक्स करते हो जो कि रेलेवेंट, वैलिड और लॉजिकल होगी, ओनली देन विल बिकम एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, सो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। आपको सिर्फ ये बताना है कि आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग है या वीक है। दोनों आर्ग्यूमेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, बोथ द आर्ग्यूमेंट्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ओके, बोलो। अच्छा, पोल भी तो चाहिए था। ओहो ओहो, रुको 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 रुको, पोल। वेरी गुड स्पर्श, शाबाश। मनु, वेरी गुड बेटा। वेदांशी, वंडरफुल। अब आज थोड़ा सा रिवीजन हो गया ना सीआर के टर्म्स का, सो इन आवर रिवीजन बैच वी कैन पिक अप सीआर टॉपिक्स आल्सो। हाँ, थोड़े हैवी क्वेश्चंस के साथ में पिकअप कर सकते हैं। आई जस्ट वांटेड टू okay, so our leaderboard says Sparsh got 7 on 7, very good boy. Shivani got 4, Kishle got 4, Anushka and Smriti got 4, Swapnil got 4, very nice, very nice. Swapnil, you are consistent, that's very good. Rishika, Manu, Sanchit and Mansi got 3. एक ऐसा 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 मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, I've seen students who are consistent, their results are getting better. इट इज सो, यहां पर अजम्पशन ये मत लो कि आपको मेरे साथ कंसिस्टेंट रहना है। किसी भी एजुकेटर के साथ आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपको कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, अपने आप स्कोर्स वगैरह सब बेटर होंगे। ठीक है, अच्छा अब इस पे लड़ें थोड़ा सा कि क्यों है नन। किसी को लग रहा है कि नहीं सर, मैं बताता हूं आपको, फर्स्ट वाला तो स्ट्रांग है, नहीं नहीं सर सेकंड तो स्ट्रांग है, दोनों वीक आर्ग्यूमेंट्स है बिल्कुल। आप, अच्छा आकांक्षा, यू फील दैट बोथ। अच्छा सुनो, सबसे पहले तो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, शुड देयर बी अ बैन ऑन प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग। ठीक है, सवाल आया, हमारे को सिर्फ आर्ग्यूमेंट को पढ़ के स्ट्रॉन्ग और वीक बताना है। इसने कहा यस, ठीक है मान लेते हैं, यस भी कर लेते हैं, बैन कर देते हैं। अब आपका रीजन बताइए। रीजन में आरवीएल चेक करेंगे। सबसे पहले तो द मनी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजिंग इज ह्यूज एंड इट इन्फ्लेट्स द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बात है। अकॉर्डिंग टू सम स्टैट्स, अगर इंडियन रुपी में बात करूं तो आपकी जो कोका कोला है वो 80 पैसा की पड़ती है, जो द इंग्रेडिएंट एंड द बॉटल, उसका जो टोटल ओवरऑल कॉस्ट आता है, दैट कॉस्ट अराउंड 80 पैसा। बट आपको वो आई थिंक सम 40 रुपीज और सो, यू फाइंड इट। सो ऑब्वियसली उसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी है, पूरा सप्लाई नेटवर्क है, काफी कुछ है ना। वो मिला जुला के भी काफी आगे बढ़ जाते हैं हम। बट एट द सेम टाइम ये भी तो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एडवर्टाइजिंग पे भी पैसा जाता है ना। अब वो 15 करोड़ 20 करोड़ तो अमिताभ बच्चन कह जाता है लेने के लिए कि भाई पेप्सी पिया करो या थम्स अप पिया करो, जो भी है व्हाटएवर। सो वो भी पैसे ले जाते हैं। तो ये तो बात ठीक है कि इट इन्फ्लेट्स द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, बात तो ठीक है। नाउ ये जो बात है ना, ये रेलेवेंट भी है, और ये बात जो आपको ठीक लग रही है ये पार्शियल है। इट इज नॉट वैलिड। एडवर्टाइजिंग डज नॉट इन्फ्लेट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग इन्फ्लेट्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। व्हाट टाइप यू चूज। यस, भाई एडवर्टाइजिंग तो जरूरी है ही, अगर एडवर्टाइजिंग नहीं होगा तो फायदा ही नहीं होगा। तो एडवर्टाइजिंग का जो कॉस्ट है वो तो आपको कॉस्टिंग का ही पार्ट मानना पड़ेगा। बट उससे इन्फ्लेट होती है वो बात जो है, वो आप कौन सी एडवर्टाइजिंग चूज करते हो। अब आपने क्या किया, आपने कहा कि भी आपके पास एक प्रोडक्ट है, यू वांट टू सेल इट, पर आपको चाहिए मैं तो शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाऊं इसमें। अब शाहरुख खान बोलेगा मैं तो 10 करोड़ रुपए लूंगा इसमें, तो आपने वो 10 करोड़ रुपए उसकी कॉस्ट में जोड़ा और लोगों से मांग लिए। अरे ढोल बजवा के निकलवा दो लोगों को, 100 लोग हायर करो, उनको बोलो ढोल बजाओ जाके मॉल के बाहर खड़े होके कि हमारा नया प्रोडक्ट आया, खरीद लो।
या सैंपल ले लो, अगर अच्छा लगेगा तो और ले लेना। सो बेसिकली व्हाट टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग यू चूज, आपको अपना ओपिनियन देना होता है का मतलब यहां पर नहीं, नहीं, आपको सिर्फ आपको उसकी स्ट्रेंथ चेक करनी है आर्ग्यूमेंट की। ये आर्ग्यूमेंट वीक हुआ बिकॉज ऑफ इनवैलिडिटी। हाँ, एडवर्टाइजिंग डज नॉट inflates the cost of the product, the choice of advertising inflates, so valid नहीं था ये argument आपका। अब second आ जाता है, no it is an age of advertising unless your advertisement is better than your other competitors। now this is not relevant only, it is talking about ban on product advertising, they are talking about unless your advertisement is better than other competitors the product will not sell, so this is irrelevant argument। ठीक है, does it make sense guys? बढ़ूं आगे लाइफ में या नहीं बढ़ूं? वैसे तो और भी क्वेश्चंस हैं अभी के लिए, बट समय का थोड़ा सा, वुड यू लाइक टू सॉल्व वन और टू मोर क्वेश्चंस? चलो एक काम करो, एक तो करो फिर सोचेंगे और आगे करना है नहीं करना। सॉल्व। प्रियांशी मैंने ग्रुप पे डाला था ना बेटा, आज का सेशन प्रीपोन था। हाँ मैंने मॉर्निंग में भी 5 ऐसा दिन में भी 5 बजे बोला था, बट देन आई पुट इट ऑन द ग्रुप ऑल्सो नो। बाकियों का नहीं दिखता चैट, नहीं विक्की, यहाँ पर बाकियों का चैट बाकियों का मतलब और स्टूडेंट्स का आपको तब दिखेगा व्हेन यू आर सब्सक्राइब्ड वन। हाँ, जो सब्सक्राइब्ड हैं, जैसे अभी है, लक्ष्य है, लक्ष्य इज आल्सो इन सब्सक्राइब्ड इन अदर कैटेगरी, अदरवाइज उनको भी दिखता, अभी को दिखता होगा सब कुछ। अच्छा पोल चाहिए, सॉरी मैं तो भूल ही गया था, मैं तो भूल ही गया था आपको पोल देना था, आप लोग सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन। वेरी गुड स्पर्श, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं प्रियांशी, अभी भी एक दो क्वेश्चन है वो तो करते हैं साथ में। सुजान, वेदांशी, मनु, स्पर्श, why only 25% people are getting the right answer? सुजान, अर्णव, why? चलो लड़ते हैं, कोई नहीं, लड़ लेंगे, सब मिलके लड़ते हैं। वेरी गुड स्पर्श, अच्छा है। बस एक छोटा सा ज्ञान स्पर्श, इस तो स्पर्श ने कहा कि आज फॉर्म में है, तो एक छोटा सा ज्ञान, छोटा सा, ठीक है। फॉर्म को अब कन्वर्ट करना है क्लास में, ठीक है। फॉर्म जब क्लास में कन्वर्ट हो जाएगी तो फिर रिजल्ट ऐसा एक्यूरेसी फिक्स हो जाएगी कि हाँ ये पर्टिकुलर एक्यूरेसी आती है, ठीक है। हम्म, क्यों? क्योंकि फॉर्म टेम्पररी होती है, क्लास परमानेंट होती है ना। विराट कोहली में क्लास है ना, तो कभी कभी फॉर्म तो ऊपर नीचे हो जाती है, तो आप सब लोगों को क्लास डेवलप करनी है, वो धीरे धीरे जब फॉर्म में बने रहोगे तब आएगी, है ना। फॉर्म कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती है, बट अ क्लासिक प्लेयर इज ऑलवेज अ क्लासिक प्लेयर, यू हैव टू हैव अ क्लास। गुड वन नो। चलो, सो द मिनिस्ट्री, अब इसमें क्या हो गया, लोल हो गया, किसका हो गया, किसलिए? अरे कोई बात नहीं, आई वाज दिस क्लोज द लास्ट ऑप्शन एंड एंडेड अप चूजिंग ए। हाँ, ए और बी दोनों है, ए और बी दोनों क्यों है? हाँ, ऐसे ऑब्वियसली कंफ्यूजन होता ही है। बी इज करेक्ट बट व्हाई ए? ठीक है, सो सबसे पहले तो अपन ने कहा था, देखो, द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैज डिसाइडेड टू डेवलप 400 आइडेंटिफाइड रेलवे स्टेशंस अंडर द इनोवेटिव स्विस चैलेंज मेथड। सो यानी कि ये हो गया कि देयर आर सेवरल मेथड्स टू डेवलप अ रेलवे स्टेशन, तो उन्होंने एक मेथड कौन सा लिया? स्विस चैलेंज मेथड, ठीक है। इट हैज डिसाइडेड टू गो अहेड विद द डेवलपमेंट ऑफ अ फ्यू स्टेशंस ऑन इट्स ओन। यहां आ जाओ प्रियांशी, ये देखो क्या लिख रहा है, इट हैज डिसाइडेड। कौन है इट? पहले तो मुझे बताओ इट कौन है? इट कौन है? ये रेलवेज मिनिस्ट्री, बेसिकली द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज मिनिस्ट्री है ना।
राइट राजू, एग्जैक्टली करेक्ट, द मिनिस्ट्री, सो मिनिस्ट्री है ना, मिनिस्ट्री ने डिसाइड कर लिया है टू गो अहेड विद द डेवलपमेंट ऑफ अ फ्यू स्टेशंस ऑन इट्स ओन। अब ये फ्यू तो अपने आप करेंगे, तो बाकी कैसे होंगे? अंडरस्टूड हो गया ना, बाकी कौन से अब समझ में आ गया प्रियांशी? ठीक है, सो फर्स्ट हो गया, ए और बी दोनों हो गए करेक्ट। हैप्पी हो गई जनता, खुशी मिली। लास्ट, आज किसी ने कहा था, किसी स्टूडेंट ने, कि सर जब लास्ट वाले क्वेश्चन सही होते हैं ना तो स्माइल के साथ सेशन खत्म होता है, तो अच्छा लगता है। ठीक है, क्लास स्टार्टेड एट 5 सानिका, आई नो नॉट 4 o'clock, इट वाज एट 5, इट वाज 4 o'clock रादर। एक और लो करो, अच्छे लगते हैं मुझे इससे बच्चे जो ऐसे, आई डोंट नो व्हाई बट आई जस्ट लाइक इट, यू नो, व्हेन सम स्टूडेंट्स कॉल सर जी। मैं थोड़ा सा, आई एम टोटली, यू नो, मैं, मेरे जैसे इंग्लिश टीचर्स होते नहीं है वीआरसी वाले टिपिकली, तो मतलब इंग्लिश वाले ना बड़े इंग्लिश इंग्लिश से होते हैं, थोड़ा स्टीरियोटाइप होता है इंग्लिश टीचर्स का। अच्छा, पोल भी तो देना था, भूल जाता हूं मैं। स्वरा, स्वरा, संचित, अर्णव, मनु, वेदांशी, संचित, स्वरा, स्पर्श, क्या हुआ? चलो कोई नहीं, डिस्कस करते हैं, देखें क्या हो गया, कहां पर प्रॉब्लम है। So the leaderboard says Sparsh last में गलत हो गया, you got it wrong. So Sparsh got 8 or 9, very good. So always see what is there, do not see what is not there. ठीक है? So 8 or 9 is a wonderful score. Manu got 5, very good. Shivani 4, Kishle 4, Sanchit 4, Anushka 4, Vedanshi, Smriti, okay, 4, rest 4. ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, क्या प्रॉब्लम आई बताओ? Jarvis, okay, somebody join a name with Jarvis. ओके, देखो मेरी बात सुनो, हम क्या है इसमें, हम भटक गए एक्चुअली इधर उधर, है ना, इसलिए हमको बाकी ऑप्शंस ठीक लगे, क्योंकि ए बहुत सिंपल लगा। हुआ ना स्पर्श ऐसा? ए ऐसा लगा ना कि मतलब ये तो मतलब ठीक है ना, ये थोड़ी है, ये तो बहुत सिंपल है। हाँ, candidates from top-notch foreign and private banks have made a beeline for being considered for the post of MD and CEO for public sector banks. ठीक है, अब इससे क्या इन्फर होता है आपको? सबसे पहले हमको किसी ने कहा यहां पर इन्फर हमें करना है डी। सो डी क्या है? बी लाइन मतलब ऐसा लाइन लगा के खड़े हो गए पीछे। हाँ, आज जल्दी हो गई वैभव। सो डी, प्राइवेट बैंक कैंडिडेट्स आर मोर क्वालिफाइड एंड अग्रेसिव इन बिजनेस। हाँ, अरे भाई ये कैंडिडेट्स ने लाइन लगाई थी, तो इससे इनके ज्यादा क्वालिफाई होने का कहां से पता लगा? ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक एम्प्लॉयज आर नॉट मच क्वालिफाइड। नहीं नहीं नहीं, ये तो हम फिर वापस वही बात, फॉरेन एंड प्राइवेट बैंक्स के एग्जीक्यूटिव्स लाइन लगा रहे हैं, तो पब्लिक बैंक वालों को कैसे कुछ कहोगे? ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे हायर सैलरी देन प्राइवेट बैंक्स नहीं लिख रहा है यहाँ पे, ये अज्यूम नहीं कर सकते आप, ये हवा में अज्यूम कर रहे हो। सिर्फ एक ही अजम्पशन आएगा कि प्राइवेट बैंक्स कैंडिडेट हैव अ ग्रेटर इंटरेस्ट। अगर लाइन लगा के खड़े हुए हैं तो एक ही तो बात पता लगेगी कि भाई इनका इंटरेस्ट है, तभी तो लाइन लगा के खड़े हुए। बाकी और कोई भी चीज स्टेटमेंट में नहीं दी हुई है, हवा में नहीं अज्यूम करोगे कि अच्छा सैलरी ज्यादा मिल रही होगी, नहीं। ठीक है, गॉट इट? चलो एक और क्वेश्चन है, पर ये अपने आप कर लेना बाद में। Before I sign off, guys, I would like to tell everybody that whoever is a reader here, okay, whoever reads a lot, guys, please look into one thing, that if you are a reader, read something which challenges you. आपकी CR और आपकी RC develop करने के लिए there is only one way,
सिर्फ एक तरीका है कि हम वो पढ़ें जो पढ़ने में जोर आता है, जो पढ़ के हम बोर होते हैं, जिसको पढ़ के अच्छा सा मन नहीं करता है पढ़ने का. ओनली देन you'll come out of your comfort zone. And this advice is not for beginners. This advice is for people who are voracious readers, people who like to read. Okay? Got it? So before I sign off, I just remind you once again, guys, pick up your Plus subscription or iConnect ASAP. You still have time. Give yourself a structured preparation. Sanika, अभी बताता हूँ next class कब है. ठीक है? When you do that, you can always use my code. That will give you 10% additional benefit. So Sanika, next class for the revision batch, if you are revising CAT 21, ठीक है? So YT पे 1 o'clock. And special class on Unacademy is 5 p.m. आज ये class 4 o'clock थी because of some reason I mean my personal reason I kept it at 4 o'clock. Otherwise the class is at 5 o'clock. Done? And you can come on my Telegram group as well. वहाँ पे सारा information मिल जाएगा. राजू, सानिका, आप लोग उस पे रहो साथ में. ठीक है? All right, guys. Sayonara to everyone. Thank you very much. Stay consistent for better results. बस सब ध्यान रखना है, लेकिन गिरना नहीं चलेगा. और रुकना तो है ही नहीं. चलो, कल मिलेंगे शाम को 5 बजे अनअकैडमी ऐप पे, और बाकी 1 PM मिलेंगे यूट्यूब पे. डन. थैंक यू वेरी मच गाइस. बाय बाय. जारविस, ये डाउनलोड हो जाएगा कुछ टाइम के बाद में. यू कैन डाउनलोड दिस.